What's up? Director and Principal Secretary, ICR ISSR, as our lead speaker. It's an honor and privilege to have you here with us, sir. Welcome to the forum. We also have Professor SPS Khanuja, Founder Chairman of Flora Fauna Science Foundation, Dr. A.K. Singh, Senior Vice President of the body, and Dr. Neeraj Jain, General Secretary of the Foundation. Greetings and welcome you all. May I now request to begin with Professor SPS Khanuja, sir, to please initiate the session and welcome our guests, sir. Thank you, Manika. Thank you, Neeraj, for facilitating the platform. Let me welcome Dr. Ashwini Pathak, Dr. A.D. Pathak, who is Director of Indian Institute of Sugarcane Research in Lucknow, which falls under Indian Council of Agriculture Research, ICAR. I must say that I have interaction with Dr. Pathak of decades, but sharing a platform with us on Flora Fauna, this is the first time he has come. And I have otherwise also a good lineage with the Sugarcane Research Institute because my wife worked for a long time there, and Dr. Pathak and Dr. Archana Suman were colleagues there. As Dr. Pathak would be knowing about Flora Fauna, but still I would like to elaborate for him and also those who are joining today for this specific lead talk, that Flora Fauna Science Foundation is a foundation created by many scientists across the disciplines and across the streams of science and also social sciences. In addition to the scientists, there are farmers, entrepreneurs, general masses, journalists, and industry, and also those who are creators of awareness in society. And Flora Fauna Science Foundation works on a basic principle of HENA. HENA is health, ecosystem, nutrition, and agriculture, through which putting the science and technology component, we aim to create entrepreneurship. And that is where the research institutions like Indian Institute of Sugarcane Research become very important, that we create a bridge between society and the science, such that the translational technologies can really be made a reality. As you know that we have been working since 2015. Now 7 years have been completed for this foundation, working as a bridge. And this bridge has been working on various themes. And for last 3 years, we have been creating an annual theme also. So the first one in this was Khet Se Sehat, where we talked about how health can be cultivated from farms, including medicinal plants and those plant materials which can be used for health. And then second one was Poshan Se Roshan, that how do we enlighten and empower the society through nutrition, because nutrition is the preventive way of having the best health. And this year it is Krishi Se Khushi. Now Krishi Se Khushi means that what we want to do is we want to bring happiness in all communities, including farmers, villages, and urban areas through agriculture. तो आप सभी का स्वागत इस मंच पर, जहां हम फ्लोरा फाउना साइंस फाउंडेशन द्वारा जो देश के विख्यात विशेषज्ञ हैं उनको आपसे मिलवाते हैं, उनकी बात सुनवाते हैं, और हम एक प्रयास करते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज या जो विज्ञान की खोजें हैं जो गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, जिससे उद्यमिता पैदा हो सके, उसकी ओर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज हमारे इस मंच पर डॉक्टर अश्विनी पाठक, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, जो गन्ना संस्थान है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, ICAR का लखनऊ में, उसके निदेशक हमारे साथ हैं, जो कि आज की लीड टॉक देने जा रहे हैं। तो इस लीड टॉक को जब हमने विषय दिया तो दिया कि शुगर केन टेक्नोलॉजीज फॉर स्वीट इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
तो दो इसके कंपोनेंट हैं। एक तो ये कि वो मधुरता आर्थिकी में हो, वो स्वीटनेस हो जिससे सभी तक खुशी पहुंच सके, प्रसन्नता पहुंच सके, एंड फार्मिंग टू हैप्पीनेस जो हमारा थीम है वो आगे यथार्थ हो सके। और उसका जो रास्ता हम चुनते हैं हर बार, जैसा कि आप जानते हैं, वो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो मुझे ये विश्वास है कि आज डॉक्टर पाठक आपको न केवल गन्ने के बारे में बताएंगे या गन्ने की जो रिसर्च हुई है उसके बारे में बताएंगे, बल्कि वो इस बात पे विशेष ध्यान दिलवाएंगे आपका कि क्या छोटे छोटे स्तर पर भी ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिससे किसान और जो किसानों के आगे की पीढ़ी है, जो कि अब पढ़ लिख के तैयार हो चुकी है, वो उनको अपनाकर उद्यमिता ला सकते हैं। तो उसकी ओर बढ़ते हुए ना केवल हम इसकी बात करेंगे कि क्या गन्ने के खेती में हो सकता है, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर भी सुनना चाहेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय था जब गन्ने का अर्थ माना जाता था कि चीनी या शुगर बननी है उससे, और अब जो आप देख रहे हैं पूरा विश्व जैगरी प्रोडक्ट्स की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जैगरी, जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैगरी या मिनरल शुगर या ब्राउन शुगर जो कॉमन भाषा में लोग कह देते हैं उसके, और फिर उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आज जो आपके कन्फेक्शनरी के भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जैगरी होती है वो महंगा हो गया, और जिसमें चीनी होती है वो सस्ता भी हो गया, और उसको लोग अवॉइड भी करने लग गए हैं बिकॉज ऑफ लाइफ हेल्थ स्टाइल डिजीजेस। और जो लाइफस्टाइल है वो हमारा जो विशेष तौर पर जो विकसित देश हैं उनका ऐसा होता चला जा रहा है कि क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास संपन्नता है, तो वो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, और खर्चा करते हुए वो आराम पसंद हो गए हैं, और उससे जो हमारा बॉडी की जो एनर्जी या जो कैलोरीज हैं वो पूरी लग नहीं पाती हैं, और इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीजेस, ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन्स और बड़ी सारी ऐसी चीजें चलती जा रही हैं। और अभी जब कोविड के काल से हम निकल के आए हैं तो आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, जो डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स दिए लोगों को बहुत अधिक मात्रा में ताकि उनको बचाया जा सके, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनको बचाने के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके पश्चात जो है बहुत लोग प्री डायबिटिक हो गए हैं। उनका जो शुगर का स्तर है वो इतना ज्यादा हो गया है कि अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो वो डायबिटिक पक्का हो जाएंगे। और इस स्तर पे शुगर बढ़ी है कि जहां हम 100 से नीचे मानते थे वो 500 तक क्रॉस कर गई लोगों की। और इधर डॉक्टर पाठक गन्ने पे काम करते हैं और उसमें शुगर ही होती है, तो वो ये भी बताएंगे कि ये शुगर हेल्दी वे में कैसे आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है, आपके स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और वहीं जैगरी और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट है, और शुगर का उपयोग, और फिर शुगर को किस तरीके से उपयोग करना चाहिए कि वो सेहत के लिए अच्छी हो। और तीसरी बात जो मैं डॉक्टर पाठक को भी बताना चाहूंगा वो ये है कि जो फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन है, इसके मंच पर लीड टॉक्स और जो कई तरीके के व्याख्यान हुए हैं उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर, सेक्रेटरी डीएसटी, डायरेक्टर ऑफ आईएआरआई और बहुत ही ऐसे व्याख्यात लोग आ चुके हैं, और जिन्होंने ये माना कि इस संस्था के साथ अगर कोई कोलैबोरेशंस किए जाते हैं तो ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे किसानों के पास गांव-गांव जाते हैं, तो वहां तक टेक्नोलॉजी की पहुंच हो सकती है। तो हम ये भी चाहेंगे कि शुगर केन इंस्टीट्यूट फ्लोरा फोना के साथ कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियां या ऐसी उद्यमिता के तरीके हमें दिलवाए जो हम किसानों तक पहुंचा सकें या किसानों को आप तक पहुंचा सकें, और उस सेतु से हम खुशी ला सकें। तो आज इसी चीज को आगे देखते हुए और एक विशेष समस्या जो किसान जो शुगर केन या गन्ना के किसान हमेशा कहते हैं कि ये एक लंबी फसल है, इसके साथ हम क्या क्या और ले सकते हैं, तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के क्या आयाम हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पर भी आप जरूर रोशनी डालिएगा। तो इन शब्दों के साथ एक बार पुनः डॉक्टर पाठक का स्वागत करते हुए I once again thank Dr. Pathak for being on this platform with us. I would like that
he brings to you a new thinking about sugarcane. I request Dr. Neeraj Jain to introduce formally Dr. Pathak so that the viewers उनके बारे में जान सके. Dr. Neeraj अश्विनी पाठक जी का एक परिचय देंगी, जिससे आप लोग जान पाएंगे कि उनके विशेषज्ञता क्या है और वो किस तरीके से एक मिशन को लेकर चल रहे हैं. डॉक्टर नीरज जान. Thank you so much, sir. It's a privilege for me to introduce our lead speaker for today, Dr. Ashwini Dutt Pathak. Dr. Pathak started his professional career in ICAR as a scientist S1 in plant breeding at ICAR Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore at Tamil Nadu on January 21, 1985. He also worked at SBI, that is Sugarcane Breeding Institute, regional centers located at Karnal in Haryana and Motipur in Bihar. He joined ICR Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, as scientist selection grade on July 27, 1998. He was selected as head division of crop improvement at ICR IISR, Lucknow, and worked there during July 11 to 2011 and August 4, 2016. Dr. Pathak assumed the charge of the coveted and prestigious position of Director ICAR IISR, Lucknow, on August 4, 2016, and holding the same position till date. In addition, he is also holding the position of project coordinator of All India Coordinated Research Project on sugarcane since April 2019. During his distinguished professional career, Dr. Pathak was associated in development of large number of sugarcane varieties, including CO 92033, CO PUN 84211, CO LK 8102, and many more. He also developed sugar beet varieties LS6 and IASR Comp1. Dr. Pathak also developed 18 top borer tolerant genetic stocks of sugarcane. Dr. Pathak is a member of several professional scientific societies. He is President, Sugarcane and Sugar Technologists Association of India, Vice President, NISTA, that is North Indian Sugarcane and Sugar Technologists Association, and Counselor of Sugarcane Technologists Association of India. Dr. Pathak has been conferred with several prestigious awards, including Dr. Punjab Singh Vishisht Vaigyanik Award by UP Academy of Agricultural Sciences, Excellence in Science Award by NISTA, and Global Leader Award for Research by ICFNA. Dr. Pathak is the fellow of several societies, including International Society of Noni Science, BioVed Research Institute of Agriculture, Technology and Sciences, Allahabad and Society for Allahabad and Society for Sugar Research and Promotion. Dr. Pathak is a member of several important committees, including ICR Governing Body, Institute Management Committee of ICR National Research Center on Integrated Farming, Advisory Committee of UPCSR, Shahjahanpur, Advisory Board of National Sugar Institute at Kanpur, Principal Member of Sugar Industry Selection Committee, FAD2. Dr. Pathak is widely traveled man in India and abroad. Dr. Pathak was instrumental in signing an agreement between ISR Lucknow and Bihar government, which laid the basis of the success story of breeder seed production in Bihar, improving the production and productivity of sugarcane in Bihar. This model was recommended to be followed by the entire country by task force constituted by Ministry of Food and Civil Supplies, Government of India. Dr. Pathak also played an important role in arranging regular meetings of ISR scientists with the scientists of UPCSR, Shahjahanpur, and SAUs and the officials of the State Cane Development Board, sugar mills and farmers for transfer of improved production technology culminating into better crop yield and sugar recovery. With the sincere and concerted efforts of Dr. Pathak as Director IISR, Uttar Pradesh has achieved an unprecedented sugarcane productivity of 80.5 ton per hectare with sugar production of 12.64 million tons during sugar crushing season of 2019 to 20. Dr. Pathak was also instrumental in developing the team of scientists of all disciplines, sugar industry of DSCL group for developing the farmers' income in 8 selected villages in PPP mode. This contributed towards income enhancement and creation of smart villages. As Director IISR Lucknow, Dr. Pathak was instrumental in establishment of biological control laboratory for mass productivity of bioagents against sugarcane insect pests and diseases, and dissemination of technology for enhanced cane and sugar productivity in Maharashtra. Quality jaggery production cum training units in selected districts of UP for income generation and entrepreneurship development. Soil testing districts of UP laboratory for soil health management and need-based fertilizer recommendation to growing crops aiming to enhance productivity
and profitability of the system at Farmers Field in Lucknow district with the financial assistance of RKBY. The accredited test laboratory ATL for genetic fidelity testing and virus indexing has been established as ISR Lucknow with financial assistance from Department of Biotechnology, Government of India. Dr. Pathak has published more than 100 research papers in reputed national and international journals, published 32 books, chapters, proceedings, souvenirs, report manuals, 10 technical bulletins, folders, and 43 popular articles. He has presented more than 200 papers in national and international conferences. With this brief introduction, sir, we welcome you and request you to Thank you, ma'am. Honorable Dr. Khanuja, sir, and Dr. A.K. Singh, sir, Madam Nirja, and other associated with the Flora Fauna Science Foundation. This is a very good opportunity for me to give my views about what we are doing at national level and at our institute level, and share our few things with this August gathering. And I am really grateful to Honorable Dr. Khanuja, sir, for giving me this opportunity. Sir, if we see sugarcane, it's a very, very important crop, cash crop in India, and the technology for sugarcane economy and entrepreneurship, I will discuss few things. And just, sir, I will. Yeah. Now, sir, screen is clear? Okay. Then, if we see the scenario of sugarcane at national level, it's being grown in around 5 million hectare area. And if we see the productivity and production since the beginning and now itself, it's contributing around 1.1% in GDP and more than 5 in agricultural GDP. And the contribution of this crop is more than 1,10,000 crore rupees to national economy. And if we see the farmers, 7 to 7.5 million farmers are working, their livelihood is attached with this crop, and more than 5 lakh skilled workers, they are working in sugarcane sector, in sugar industry and other things. So now sugar cane is not only grown for sugar purpose. And if we see the totality of plant, one thing, green top for fodder purpose, stalk for sugar, and from stalk we get molasses, and so many things like this bagasse and other things. From bagasse, earlier we were producing this cogeneration, but now since solar system has come up, again we are moving for different use of this bagasse, specifically the plates and other items and particle board and so many things. And if we see the sugar scenario in the country, if we see in 5 years back, we were producing around 24 million tons of sugar, and more than 31.8 million ton has come to this year. And area is almost similar, and recovery has gone up. And this thing I am really projecting because that how the technology has played role in improving the sugarcane and sugar productivity in the country. And in totality, if we see, we produce sugar, we produce jaggery, we produce electricity, we produce bioethanol. So now we are producing around 500 billion liter of bioethanol, and we have reached to the status of around 10% blending. In 2025, we are in need of around 1,000 crore liter of bioethanol. How it will come? And now our productivity has gone up. With this, we feel that we will be in a position to produce from sugarcane itself around 850 crore liter of bioethanol, plus 200 crore liter of distillery product like wine and other things the sugar industry can produce. But we need 1,300 crore liter of
bioethanol or this ethanol product in the country. How it will come? In addition to sugarcane, one more crop is there, sugar beet, on which Indian Institute of Sugarcane Research is working. And that I will discuss later on with the intercrop. But now if you see the sugarcane, it has not only given the energy to the people, green energy to the system and clean environment. In addition, during COVID period, we have produced 2.01 crore liter of sanitizer also. This has helped in protecting people from that disease. And this scenario is of Uttar Pradesh. At the once in a point of time, we were producing very less quantity of sugarcane, and our productivity was around 50 tons per hectare. Now it has gone to more than 80 tons per hectare, more than the national average we have reached. And if you see the sugar, Indian sugar exports, earlier it was around 11, and now it has reached to 57. And now we are planning to export more than 12 million ton of sugar to different countries, because Brazil and Thailand had produced lesser quantity of sugarcane. And this I would like to introduce our institute, that Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow. It was established in 1952. And since this 70-year journey, we have developed several technology. And if we see the varietal scenario, we have developed more than 15 varieties and given to the nation. And at present, sugarcane variety COLK 14201 and 15201, 15207 and 15466. These varieties are latest variety and early maturing variety, because since now CO0238 variety was occupying larger area, but it has the red rot disease. Under such circumstances, this institute has given 5 varieties to the farmers, and now it is occupying larger area, and it's being multiplied very quickly by the farmers. And major technology, if we see, sir, this moist hot air treatment. This technology has helped sugarcane grower and sugarcane community to the larger extent. When in earlier varieties comes and it is very highly susceptible to sugarcane, even COJ 64 from Jalandhar. Because of this equipment, this variety had sustained for more than 2 decades. And farmers and sugar industry have earned more than 1 lakh crore of additional benefit with this machine. And cane node technology, now seed if we move with sugarcane seed, जैसे गन्ने का बीज हम ले जाते हैं तो ट्रकों में लगता है, तो अब खाली नोड्स को ट्रांसफर करके हम लोग बीज को ले जा सकते हैं किसानों के बीच में, और इससे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थोड़ी घटती है. तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग पेटेंट भी हो गया है सर. और एक हमारे पास क्या होता है, गन्ने में 1:10 मल्टीप्लिकेशन सर होता है. फॉर दैट वी नीड टू get the varietal spread is very slow. For that, Institute has developed space transplanting technology wherein we are getting 1:30. And now that micropropagation with micropropagation techniques, we are going to 1:1000 multiplication ratio also. And for planting method, different is ring pit planting method, where the land is undulated and land is not very much suitable for sugarcane cultivation. That with the pits we can put the sugarcane and we can get the very good yield from that method. And one more is there, that modified trench method. Normally sugarcane was grown in trench method, but when we have mechanized this with our engineers, and in between we can grow the different intercrops to get the more profit and mid-term income to the farmers. And even we have technology for skip furrow method, wherein we are saving the water
And this is very useful technology. And if we go for saving the water, that will be much more useful, because in our country we used to say that sugarcane is getting more water for producing sugar. And for that, I have one thing to submit, that sugarcane, if we compare it rice with system, annual system is there, our crop water requirement is quite low. And carbon sequestration on this institute is working, and this crop is adding more to soil, different things, because root biomass is there and different things are there. And technology package we have developed for ratoon management, and integrated weed management technology also our institute has developed. And for saving water and for protecting crop from different diseases and pests, we are using trench method. Now that trash we are not burning. Earlier we used to burn for protecting it from insect pest, because insect will die in that. But now it is protecting the soil, evaporation is being reduced. And seed production is very, very important for us. And with this, farmers and all others are getting much benefit. अभी हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्रिएट किए हैं डिफरेंट विलेजेस में, सीड इंटरप्रेन्योर्स को हम लोगों ने डेवलप किया है, जिससे कि फार्मर्स अपने आप जो हमारे यहाँ से सीड ले जाते हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, एंड दे आर गेटिंग around 2.5 times higher income from seed production. And management of bioresources and enhancing sugarcane productivity in soil health, that also we are using, and microbial cultures and different things we are utilizing in our program. And this is very important, that irrigation is being scheduled at critical stages, and what is requirement and what we have to do, that we have to focus. And this is clear that this crop is not consuming that much of water, because this is suited to North Indian conditions, sir. And ये जो crop है, चाहे यूपी में है या बिहार में है या वेस्ट बंगाल, यहाँ इसकी पानी की requirement कम है सर, as compared to तमिलनाडु and महाराष्ट्र. वहां पे सॉइल इसके उस पे नहीं है, और हमारी एनुअल रेनफॉल भी वहां कम है. इस कारण वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ शुगर. But this is not like that. If we go and we make use of water judiciously, then there won't be that much situation. And sugarcane in multiple ratooning system, this will reduce the cost of cultivation through micro irrigation and organic addition. Or one very big achievement we have made, that we have gone to farmers in about more than 2.398 lakh hectare of area, and we have shown our technology. And in 2 years, we have saved more than 300 billion liters of water. In that, we have utilized our technology of trash mulching, trench planting, press mud application, and laser leveling. And in that, DCM Sugar Mill has helped with us financially. And we have demonstrated our technology in 2.98 lakh hectare area and saved more than 300 billion liters of water annually. So, such way, if we move, we can reduce the water requirement, and this crop, what we call it, that it is consuming more water, that concept we can at least dilute. And microbial cultures are there. We are making MOU with different organizations. And this is also very useful, because now we are moving in natural farming conditions, sir. For that, we need something back up to the soil, and in that direction, our institute is working. And integrated farming system model. We have developed integrated farming system model for 0.5 hectare area, 1 hectare area, and less than
1 acre area also. In that, different intercrop is there, and entrepreneurial crop like beekeeping and horticultural crop also we are adding. Pond for fisheries cultivation we are making, and I will just show that how we are getting benefit out of this. And cost benefit ratio goes to nearing 2.5 with our technology of intercropping in sugarcane. And major sugar, this intercrops are mustard, and potato is very favorable for this condition. Wheat, because in Western UP, farmers don't want to leave wheat or sugarcane, both things they want to go simultaneously. Then our institute has developed FURB method of planting, that furrow raised bed method of planting. In that, sugarcane and wheat, both things we are taking together. And for wheat also we are not loser, and for sugarcane also we are not loser. And same time we are getting higher productivity per unit area and profitability to the farmers. And if we move for disease-free, genetically pure seed cane through micropropagation, it is well-known technology. And this is really need of our, because we are not able to multiply or put our varieties in a larger area. 238 was occupying more than 80% area in UP. And now red rot has come up. It is very difficult to replace the variety. Now we are adopting all the technology and giving it to farmers, that seed, quality seed we are giving to farmer with UP government and different government sectors. And biocontrol is one component, sir, which is very important because we used to reduce the pesticide application in sugarcane, although we are using very less pesticide. And for every insect, we are having biocontrol agent at larval stage, at egg stage, and even pupal stage also it has come up. So, iske liye we have different technology package is also available. इसमें सबसे अच्छी चीज है कि हम इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं. जैसे हम सीड के लिए इंटरप्रेन्योरशिप फार्मर्स में डेवलप कर सकते हैं, यंग ग्रुप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है सर. वैसे बायो कंट्रोल एजेंट जो है एक छोटे से कमरे में भी लोग डेवलप बना सकते हैं और उसको फार्मर्स को दे सकते हैं और क्रॉप अपनी हम लोग बचा सकते हैं सर. तो हम दोनों को साथ लिंक करते हुए चलेंगे सर, टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज helping youngsters in entrepreneurial development, sir. तो ये डिफरेंट हमारे एजेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट आइडेंटिफाई किया है. और इवन ट्राइकोडर्मा के कल्चर्स को भी हम लोग कुछ आइडेंटिफाई किए हैं जो हम यूज कर रहे हैं. और अर्ली शूट बोरर एक मेजर कांस्टेंट इस साल रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग वाइड स्केल जो है स्टेट में और कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स में अपने डेवलप किए हैं और फार्मर्स को कंट्रैक्ट करके इसको कलेक्ट करके और कंट्रोल हो गया है सर. और ये डिफरेंट हमारे टेक्नोलॉजीज हैं जो रेड रॉट मैनेजमेंट में काम आते हैं. मॉइस्ट हॉट एयर वो हम पहले ही बात कर चुके हैं और इससे बहुत लॉस होता है सर रेड रॉट से. तो अभी तक हम उसको जेनेटिकली वेराइटीज के थ्रू कंट्रोल करते थे, लेकिन अब ट्राइकोडर्मा के भी कुछ वो है मटेरियल जिसके थ्रू हम धीरे धीरे कंट्रोल करें. लेकिन सीड ही एक ऐसा इसका इशू है जिससे कि हम बेस्ट वे में कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी वैरायटी को मोर देन 30% एरिया से ज्यादा ना जाए, वो एक हमारी नीड है. और स्टॉक एंड इंटरनोड बोरर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं स्ट्रांग. और स्मटेक अब नया, पहले ट्रॉपिकल इंडिया में ही था, अब सब ट्रॉपिकल में भी आ रहा है. तो इसको भी हम लोग केवल फंजीसाइड सीड ट्रीटमेंट से इसको मैनेज कर सकते हैं और इसकी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं. और विल्ट एक डिजीज कहीं कहीं आती है अपने यूपी में भी और इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स में, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं विद सीड सैनिटाइजेशन. दैट उसको सीड को, अच्छे सीड को सिलेक्ट कर लें, फिर ये हम मेंटेन कर सकते हैं. और टॉप बोरर एक मेजर है
इसके हमारे पास कार्ड्स हैं, ट्राइको कार्ड, और उससे मेंटेन कर रहे हैं, और कंट्री में इससे कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर टर्माइट मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग कर रहे हैं सर। और ये भी जो शुगर केन ग्रोइंग ट्रैक्ट है, क्योंकि इरिगेटेड एग्रो इकोसिस्टम की ये क्रॉप है, तो हम आसानी से इसको मैनेज कर ले रहे हैं। और ISR का सर एक कॉम्बो ट्रैप है, जिसमें कि फेरोमोन्स और लाइट दोनों यूज करते हैं, और इससे पूरे नेशनल लेवल में हम लोगों ने इसको स्प्रेड किया है, और इससे जो है इंसेक्ट्स को, व्हाइट ग्रब और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये नीडेड है, स्पेसिफिकली हम महाराष्ट्र में टोटल इसी के थ्रू कंट्रोल करिए हैं। ऑल्दो EPNs आर अवेलेबल, लेकिन ये एक इजी टू हैंडल टेक्नोलॉजी है। और पोस्ट हार्वेस्ट जो हम शुगर केन कटता है और फिर उसके बाद शुगर इंडस्ट्री में जाता है, उसके लिए भी पोस्ट हार्वेस्ट के हमारे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हैं, और उसमें एक मिक्सचर इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जो कि लगभग हर इंडस्ट्री यूज कर रही है नेशन में, और ये टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल है सर। और इथेफॉन टेक्नोलॉजी है, जर्मिनेशन। सब ट्रॉपिकल इंडिया में सर जर्मिनेशन एक 45 डेज लेता है, तो इसको करने से हम करीब 30 डेज की क्रॉप को और ग्रोथ का पीरियड दे देते हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव इन शुगर केन क्रॉप। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग, दिस शुगर केन फार्मिंग की भी हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा पेयर्ड रो में अगर हम मूव करें विद इंटरक्रॉप्स तो काफी यूजफुल हो सकता है। और साइंटिफिक और लेवल पे हम लोगों ने रेड रॉट पैथोजन की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, और माइक्रोप्रोपेगेशन का ही है। और बाकी जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हम शुगर केन में कैसे घटा सकते हैं, उसमें मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें हमारे पास इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट भी, इंटरप्रेन्योर्स भी हम डेवलप कर सकते हैं, और करीब 3000 इंटरप्रेन्योर्स हम लोगों ने डेवलप किया है इसमें। तो शुगर एग्रीकल्चर टाइमली ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैकेनाइजेशन ही एक ऐसी वे है जिसमें हम टाइमली सारे ऑपरेशन जो भी गन्ने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और इस इंस्टीट्यूट ने सर फ्रॉम प्लांटिंग टू रैटून मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की है। वी आर लैकिंग इन हार्वेस्टिंग, वी आर गेटिंग हार्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, because in sugarcane harvesting, sir, more than 5 components are involved. One, top cutting, then stalk cutting, then it's a binding, then putting it on the trolley. But this Chinese or big harvesters, they are billet harvester. We cut it into pieces and take it to sugar mill. But what I feel that during April, May, our temperature is very high. And if so many pieces are there, that cut and sucrose losses will be there. Then managing that thing, we are finding it difficult in Indian agro scenario. तो इसमें सर रिजर टाइप कटर प्लांटर है, वो काफी यूजफुल है, और कंट्री में करीब 30,000 ये हैं फार्मर्स के पास। और सर यूपी में और कई उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पे सब्सिडी भी दी है प्लांटर्स पे, और ये प्लांटर्स वाइड स्केल पे यूज किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो सर प्लांटर्स हैं, इसमें हम फरोख करके नीचे फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड डाल के उसके बाद केन को कट करके डालते हैं, फिर उसके ऊपर वो जो है हम कवर कर देते हैं सॉइल से, और उसके ऊपर हम वीडीसाइड भी स्प्रे कर देते हैं। तो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली कई ऑपरेशन एक साथ करते हैं। और पेयर्ड रो हमारा इस समय सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी में है, क्योंकि हमें बीच में अगर थोड़ी जगह मिल जाती है सर, तो उसमें हम इंटरक्रॉप लगा लेते हैं, और उसके साथ साथ जो है वाटर मैनेजमेंट और डिफरेंट सेक्टर्स उसमें यूजफुल है। और उसके बाद हमारे पास 3 रो
मल्टीपर्पज शुगर केन कटर प्लांटर्स हैं। इसमें एक साथ 3 रो की हम प्लांटिंग करते हैं और बीच में अदर क्रॉप को भी, जो उसके इंटर क्रॉप्स हैं उसको भी लगा सकते हैं। तो जो डिफरेंट इंटर क्रॉप्स हैं हम लोगों ने कैलकुलेट किया है सर कि करीब गन्ने से अकेले करीब 2.5 लाख पर हेक्टेयर फार्मर कमाता है, लेकिन इंटर क्रॉप ले लेते हैं तो लहसुन, प्याज, इन सब से लेके तो करीब 5.91 लाख पर हेक्टेयर अर्निंग फार्मर की हो सकती है। तो ये हम लोगों ने काफी फैलाया है शुगर इंडस्ट्री के थ्रू। यूपी में सर सबसे अच्छी बात इस समय ये है, यूपी या बिहार या कंट्री के और सेक्टर्स में आवर डेवलपमेंट विंग इज वेरी स्ट्रांग रिलेटेड टू शुगर केन सर, एंड आवर sugar institutes, farmers, sugar industry, all are work moving together, और इससे काफी फायदे हुए हैं सर। और रेस्ड बेड सीडर कम शुगर केन कटर प्लांटर भी मशीन है, जिसमें कि मल्टीपर्पज ये भी है, इसमें हम अपने अदर क्रॉप्स को भी बो सकते हैं। हर क्रॉप के लिए डिफरेंट उसमें कैलिब्रेशंस हैं जिससे हम मेंटेन कर सकते हैं, फ्रॉम मस्टर्ड टिल पोटैटो। और ये शुगर केन पोटैटो का स्पेसिफिक है क्योंकि इसकी नीड है बिहार वगैरह में, तो ये फार्मर्स वाइडली यूज कर रहे हैं सर। और फिर उसके बाद हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है कि रैटून की प्रोडक्टिविटी सर कम होती है, और करीब 50% क्रॉप रैटून ही होता है शुगर केन का। तो ये जो पेड़ी को हम मैनेज करने के लिए यहाँ मशीन एक है हमारे पास, जिसमें 2 तरह की मशीनें हैं। एक तो पूरे उसको काट के फर्टिलाइजर डाल के, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल के सारे ऑपरेशन हम लोग एक साथ करते हैं। और रैटून में क्या होता है, हम कंट्री में या हर जगह प्रॉब्लम है, पीस मील हार्वेस्टिंग है, तो हम एक साथ उसको मैनुअली नहीं कर सकते। तो जितना कटा उसको तुरंत मैनेज कर लें हम आरएमडी से, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि फार्मर्स के फील्ड यूनिफॉर्म हो जाती है और अच्छा प्रोडक्शन रैटून का आ जाता है। क्योंकि रैटून एक निग्लेक्टेड क्रॉप होती है, अगर हम उसको प्रॉपरली मैकेनाइज करके कल्टीवेट करें तो इट विल बी वेरी मच यूजफुल। और 2 रो डिस्क का है, वो 1 रो का था सर, ये 2 रो का है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और ट्रेंच प्लांटर इस इंस्टीट्यूट ने जो डेवलप किया है उसकी सबसे बड़ी है कि यूपी में करीब 90% एरिया ट्रेंच प्लांटिंग में चला गया है सर। इसी से और ये वेराइटीज के इंटरवेंशन से यूपी जो कि 50 टन पर हेक्टेयर आज से 10 ईयर पहले था, आज 82 टन पर हेक्टेयर उसकी प्रोडक्टिविटी है। और पिट डिगर्स भी हैं फॉर रिंग पिट मेथड, एंड इंटरकल्चर इक्विपमेंट्स भी इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है फॉर प्रोटेक्टिंग फील्ड फ्रॉम वीड्स। एंड शुगर केन डी ट्रेसर भी है, क्योंकि वो जो जितने ड्राई लीव्स हैं उनको रिमूव करके फिर सॉइल में इनकॉर्पोरेट करके हम उसको यूज करते हैं सर। और ट्रैश श्रेडर भी है, जो ट्रैश हमारे बड़े बड़े होते हैं उनको श्रेड करके फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और सॉइल में हमारे पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। और शुगर केन हार्वेस्टर स्मॉल फार्म्स के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है, लेकिन जो उसके इश्यूज हैं वो हम शुरू में डिस्कस किए हैं। लेकिन वेरी सून वी विल बी इन स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग शुगर केन मैकेनिकली इन आवर एग्रो इकोसिस्टम, और वो एक जरूरत है, क्योंकि जब हम मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग करेंगे तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन अगेन करीब 10% रिड्यूस हो जाएगी, तो यही फार्मर के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा सर। और ISR कल्टी हैरो भी है, इसको भी हम लोग वाइडली यूज कर रहे हैं सर इंडियन फार्मिंग सिस्टम में। और सोलर पावर्ड मैनुअल स्प्रेयर भी है फॉर स्मॉल फार्मर, बिकॉज बिग स्प्रेयर्स वी आर अवेलेबल, और ये बहुत ही छोटे हैं और सोलर मैनेज्ड है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं किसानों के खेत में, और ये काफी यूजफुल है सर। और एनर्जी इफिशिएंट, फिर अब जैगरी की सर ने बात किया था तो हम बात करेंगे। चीनी नॉर्मली हम कहते हैं कि ये डिफरेंट डिजीजेज को इनवाइट करता है। मेरे व्यू से डायबिटीज एक जेनेटिक है, और प्री डायबिटिक सिस्टम हो सकते हैं वो स्ट्रेस से हैं सर, लेकिन शुगर से
डायरेक्ट कहीं कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं मिला है। जिसको शुगर होनी है वो स्ट्रेस या जेनेटिक कंपोनेंट है। लेकिन अब कोविड के बाद एक सिनेरियो बदला है कि शुगर को हम किस ढंग से मूव करें। प्योर जो केमिकली प्रोड्यूस्ड है व्हाइट शुगर, उसको हम रिड्यूस करके थोड़ा रॉ शुगर अगर हम यूज करते हैं कंट्री में, दैट विल बी मच मोर न्यूट्रिशियस एंड यूजफुल। सिमिलर ट्रेंड हमारे जैगरी के साथ है, ये बहुत ही यूजफुल है। और जैगरी के भी सर कई चीजें हैं। एक हमारे पास जैगरी का क्यूब्स है, पाउडर है, लिक्विड जैगरी है, डिफरेंट वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। और अब बड़े पैक्स नहीं चलेंगे सर शुगर इंडस्ट्री में, ये हम लोग हमेशा बात करते हैं। छोटे पैक जो आदमी थोड़ा सा यूज करे और उसके बाद नेक्स्ट पैक खोल के यूज करें, जैसे वो हाइजीनिक होना चाहिए सर। तो हमारे पास हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट ने सर 3 पैन सिस्टम डेवलप किया है जैगरी बनाने के लिए। और ये करीब हमारे पास मोर देन 3 लाख इंटरप्रेन्योर्स इसके थ्रू जुड़े हुए हैं। इसका एक सक्सेस स्टोरी हम छोटा सा शेयर करना चाहते हैं सर। बिहार में, नॉर्थ बिहार में पहले बहुत ढेर सारी शुगर इंडस्ट्री थी, ग्रेजुअली बंद हो गई। तो वहां पे जो दूर की इंडस्ट्री में लोग गन्ना भेजते थे, वो 150 रुपीज पर क्विंटल ही भेजते थे थ्रू मिडिल मैन। तो इससे काफी किसानों को फायदा नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने सोचा, तो वहां पे 3-4 एफपीओ को हम लिए और सारे एफपीओ में एक एक यूनिट लगा दिए जैगरी की। आज वहां पे फार्मर्स को 400 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है गन्ने की कीमत, जो कि पहले 150 रुपीज मिलती थी। तो जैगरी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है। और इसमें केवल हम लोगों ने जो मेजर वर्क किया है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को घटाया है। जो हमारे पास मटेरियल है, कैसे हम लेस रिसोर्सेस में हाई रिकवरी के साथ मूव कर सके। तो अब टोटल हाइजेनिक प्लांट्स भी इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। पैकिंग मटेरियल भी है कि इसको कैसे पैक करें जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। और शुगर केन जूस को भी हम लोग पैक करने का कर लिए हैं, 6 मंथ तक की है। तो और एक शुगर केन का वैक्यूम के थ्रू पाउडर भी बनाए हैं जूस से, वो भी आगे चल के पानी में डाल के एक यूज कर सकते हैं। और जैगरी पाउडर को हम लोग छोटे छोटे शैशे में ले आ रहे हैं और उसके लिए आईआईटी से, कानपुर से हम लोग एमओयू करके और उनके इंटरप्रेन्योर्स को लिंक कर रहे हैं सर। तो ये भी एक काम हो रहा है। और जैगरी फर्नेस में भी काफी इंप्रूवमेंट किए कि कैसे मिनिमम एनर्जी से हम मैक्सिमम जैगरी प्रोड्यूस करें, और उस पे ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है सर। और वैल्यू एडेड जैगरी विद विटामिन सी। और अब इधर जो हमारा कोविड का पीरियड था उसमें टर्मेरिक और तमाम कंपोनेंट की जरूरत थी, तो एंटीबायोटिक और सबको हम लोगों ने ऐड करके डिफरेंट टाइप के जैगरी बनाए। और अपने यूपी में 2 जो है हमारे जैगरी महोत्सव हो चुके हैं। एक आईएसआर में शुरू में हुआ था, फिर उसके बाद यूपी गवर्नमेंट एक लार्ज स्केल में करती है। और यूपी के कुछ ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो 5-5 हजार रुपए किलो की जैगरी बना के बेच रहे हैं, और उनकी जैगरी जो ऑर्गेनिक लेवल दे के उसको बाहर भेज रहे हैं। तो अच्छी इनकम लोगों की हो रही है। तो जैगरी की तरफ हमको जाना चाहिए और इसके डिफरेंट वैल्यू एडिशन के साथ मूव करने पे फार्मर को एक अच्छा फायदा मिलेगा और एक न्यूट्रिटिव चीजें लोगों को पहुंचेंगी, और वो उसकी जरूरत है। डायग्नोस्टिक किट्स की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अर्ली स्टेज में ही हम डिजीजेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और शुगर बीट की हम बिगिनिंग में बात कर रहे थे कि इससे भी शुगर बनती है, लेकिन अपने यहाँ जब ये हार्वेस्ट होता है उतना कंजीनियल इन्वायरमेंट नहीं होता सर। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने बायोएथेनॉल के लिए इसको प्रमोट कर रहे हैं हम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर सब लोग मिलके। और अब ये इस 2 यूनिट्स कंट्री में आ गई हैं, एक बेलगांव में है, एक अमृतसर में है। तो इस पे अब एक एडॉप्शन लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, वैरायटी, हर चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। और इंडियन कंडीशन में हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक 80 टन पर हेक्टेयर की क्रॉप पा सकते हैं, जिसमें गन्ने से थोड़ा ज्यादा
बायोइथेनॉल हमको मिलेगा। शुगर केन में करीब 7,000 लीटर पर हेक्टेयर अगर डायरेक्ट केन से करते हैं, लेकिन शुगर बीट में हमको करीब 12,000 लीटर बायोइथेनॉल मिल जाता है। और टेक्नोलॉजी हमारे पास पूरे पैकेज है, बास्केट है, जिसमें कि हम हर चीजों को पैकेज ऑफ कंट्रोल फॉर टिलरिंग, फ्लावरिंग एंड राइपनिंग के साथ हम मूव करते हैं। और स्किल इंडिया में अगर हम देखें, हमारे पास करीब 25 इक्विपमेंट्स हैं। तो इस इक्विपमेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने कई इंडस्ट्रीज के साथ एमओए किया है और वो इसको बनाते हैं और कंट्री में पूरा स्प्रेड है हमारे इक्विपमेंट का। और इसके साथ एक इंटरप्रेन्योरशिप आती है, जो लार्ज लेवल के हैं वो तो बनाएंगे, एक छोटे लेवल के होंगे जो इसको मेंटेनेंस रखेंगे, उनको भी हम ट्रेनिंग देके आगे प्रमोट करते हैं। तो एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में शुगर केन के मैकेनाइजेशन और जेगरी और वैल्यू एडेड जेगरी, इन सब का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है और इस फ्रंट पे ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। और एटलीस्ट 5 लाख लोग जेगरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सर, जो कि उनकी लिवलीहुड इससे चलती है। और हम इसके साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनको हम मैनेज करते हैं। हमारे पास मेजर टेक्नोलॉजी शुगर केन वेराइटीज हैं, बायो कंट्रोल है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, फिर बाई प्रोडक्ट के प्रिपरेशंस की बात है, उस पर हम बात करते हैं। बाई प्रोडक्ट, आज शुगर केन का शुगर ही मेन प्रोडक्ट नहीं है। आई थिंक टाइम्स टू कम जब हमारा शुगर एक बाई प्रोडक्ट होगा और बाकी सारे तमाम प्रोडक्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कंट्री में, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने होल केन से भी परमिशन दे दी कि बायोइथेनॉल बना सकते हैं। और बायोइथेनॉल के रेट्स को इतना अच्छा मैनेज किया गया कंट्री में कि केन से बनेगा इसका ये रेट होगा, मोलेसिस से होगा इसका ये रेट होगा, और बी हेवी मोलेसिस से बनेगा उसका ये रेट होगा। तो इससे क्या हुआ, रेट रेगुलेशन से एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेकर बचा जो हम पेट्रोल बाई करने में देते, साथ साथ फार्मर्स को एक अच्छा रेट मिल गया उसके गन्ने का, और शुगर इंडस्ट्रीज को एक प्रॉफिट मिल गई, चूंकि जितनी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो हमसे लेने लगी। तो एक इंटरलिंकेज रहा हम सबका, उससे एक अच्छा बेनिफिट हुआ। और हम लोग इन सब चीजों को लेके ट्रेनिंग देते हैं, फार्मर्स को देते हैं, फैकल्टीज को देते हैं, शुगर केन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों को देते हैं, शुगर इंडस्ट्री के लोगों को देते हैं। और हर साल लगभग हमारे पास 1.2 लाख लोग कनेक्ट होते हैं, चाहे वो ई कनेक्शन हो चाहे फिजिकल कनेक्शन हो। और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग भी मूव कर रहे हैं। और हमारे केन डेस्क है जिसमें कि हम फार्मर्स जो वैरायटी की प्रॉब्लम है, जो डिजीज की प्रॉब्लम है, इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम है, वो सीधे डिजिटल वे में जाके उसका सलूशन ले सकते हैं। और इंस्टीट्यूट सबके साथ है। और आईसीटी इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए। और हम लोग इरिगेशन के लिए भी इसको डेवलप कर रखे हैं और प्रिसिशन एग्रीकल्चर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स, जिन इंडस्ट्रीज के साथ हमारे एमओयू हैं और फार्मर्स के साथ, करीब 3 लाख हेक्टेयर में हम लोगों ने लास्ट ईयर अपने एफर्ट किए हैं फॉर प्रिसिशन एग्रीकल्चर विद ड्रोन एंड अदर थिंग्स। और इच्छुक केदार एक मोबाइल ऐप भी है जिसमें हम वाटर की रिक्वायरमेंट को लेके किसान इस पे रेगुलेट कर रहे हैं कि कब पानी की क्या जरूरत है जो किसान फार्मर्स फील्ड में देने हैं शुगर केन को। और एक हम लोग और एफर्ट कर रहे हैं। 2016 में ऑनरेबल पीएम ने एक नारा दिया था कि 22 तक किसानों की आमदनी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी दुगनी करनी है। तो उस सेक्टर को लेते हुए हम लोगों ने एक डीसीएम शुगर इंडस्ट्री का ग्रुप है उसके साथ एमओयू किए और करीब 20 विलेजेज को सेलेक्ट किए और 10,000 फार्म फैमिली को और 5,000 हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया एड्रेस किए हैं, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोगों ने लिया है सर। एक न्यू वैरायटी एंड हेल्दी केन प्रोडक्शन की बात है, इंटरक्रॉपिंग के लिए फार्मर्स को प्रमोट किए हैं, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए किए हैं, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, रैटून मैनेजमेंट, केन मैकेनाइजेशन,
एडवाइजरी ऑन केन मैनेजमेंट, कंपोस्ट मेकिंग। फिर उसके बाद हम एनिमल्स को एड्रेस किए, जिसमें डी वर्मिंग और कैंप लगा के अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट किए, और मिल्क प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोले, और फार्म प्रोड्यूस मार्केटिंग सिस्टम को वहां पे लिया, और शुगर बीट को एज ए ग्रीन मेन्योर्स के रूप में लिए सर, और वोकेशनल ट्रेनिंग और डिफरेंट चीजों को हम लोगों ने वहां पे किया। हम लोगों के फोकस पॉइंट्स मेजर थे कि किसानों के आमदनी में मिड टर्म इनकम को फोकस किया, और जो वो उनके पास एनिमल थे, उनकी जो बच्चे होते थे कम होते थे, तो उस साइकिल को इम्प्रूव करके मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, और उसके मार्केटिंग को हम लोगों ने हेल्प किया। अब शुगर इंडस्ट्री सर केवल शुगर प्रोड्यूसिंग हब नहीं है, फार्मर के डिफरेंट सेक्टर्स का भी केयर करते हैं। तो 2021 में हम लोग 22 में सर फार्मर्स की इनकम मोर देन डबल कर दिए। इस साल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आए हैं डिफरेंट, तो उसमें हम लोग मोर देन 2.6 टाइम ऑन एन एवरेज जगाए हैं। लेकिन जिनको लैंड होल्डिंग जिनकी ज्यादा थी, उनका ज्यादा नहीं हुआ है। जो छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे, उनका हम इनकम बढ़ाने में ज्यादा सफल हुए हैं, मोर देन 2.5 टाइम्स। और इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री के कोलैबोरेशंस हैं, जिसमें कि हम इंडस्ट्री के साथ डिफरेंट सेक्टर में करते हैं, और उसका इम्पैक्ट एक अच्छा मिला है। जैसे कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, फार्मर्स की मिड टर्म इनकम बढ़ाने में काफी हेल्प मिली है। और अगर ICR की, ISR की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम लोग लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर में ISR की ही अकेले टेक्नोलॉजी के साथ गए हैं। और जो हमारी वेराइटीज हैं, वो चाहे सेंट्रल सेक्टर की जितनी वैरायटी 100% एरिया सरोनी का है। और ये हम डिफरेंट अपने टेक्नोलॉजीज के इम्पैक्ट को भी एक थर्ड पार्टी से कराए हैं सर। तो उसमें एनुअली जो फार्मर और इंडस्ट्री को गेन होता है, उस चीज को हम लोगों ने मेंशन किया है। और कई टेक्नोलॉजी फास्टर रेट में हम फार्मर्स के पास ले जाते हैं। उसके लिए हम MOA करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ, शुगर इंडस्ट्री के साथ और फार्मर्स के साथ। और उसके साथ से हम ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है, और कंट्री में जो शुगर केन का प्रोडक्शन है और फार्मर्स की जो कंडीशन है शुगर केन ग्रोवर्स की, वो काफी इम्प्रूव हुई है। तो अभी हम महाराष्ट्र में थे, तो वहां पे भी लोग कह रहे थे कि जो शुगर केन से रिलेटेड फार्मर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वहां पे इम्प्रूव हुई है। इसी के साथ हम अपने प्रेजेंटेशन को सर बंद करते हैं, और थैंक यू वेरी मच। अगर कोई इंटरेक्शन हो सर, हम बात कर सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you for the wonderful session. Your talk really brought some clarity on the subject at so many different levels. Thank you so much. So we have received 2 questions in the mail today. Yeah. Shall I go ahead? Yeah. Yeah. So the first question is, can you tell us more about CaneDes? Can you tell us more about CaneDes? Yeah, CaneDes. Yeah, CaneDes. It's a computer-based operation which we have given our this component to sugar industry. If farmer go with their leaf, suppose any problem is there, just search on that. They will get entire information, and suppose some disease is there or nutrient deficiency is there, we can easily get information. And it's widely utilized. Okay, I hope the person who asked this got some clarity on CaneDes. And the second question, he only asked the second question. Sir, can you please elaborate on Ikshu Kedar? Is it an application or web-based solution? Yeah, it's a mobile-based app, and farmers are now using. We have made it free. It's on Google Play, and just to soil information, they have to put when sugarcane was planted and what is when they have irrigated, and they will get when we have to irrigate next time. This is for water management only.
Okay, that's a wonderful Yeah. application, I suppose. And for fertilizer also we have developed, but just something is there. That's why I am not promoting now. Okay, okay. Thank you, sir, for Well, letting us know about these two applications. That was very informative. There are no more further questions from the viewers, but I would like Professor Kanuja to say something more to us. Sir, please. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी। मैं यही कहूँगा, अपार शक्ति ये आज आपने गन्ने में और शुगर इकोनॉमी में, और कितने आयाम हैं, ना केवल जो कि एक आम सोच बनती है लोगों की कि शुगर केन का मतलब शुगर या चीनी है, उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में इसकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, किस तरह से उद्यमिता पैदा हो सकती है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी संभावनाएं हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि आपने जो ये बताया कि कुछ मॉडल्स हैं उद्यमिता के, जी आपके यहाँ पे कुछ ½ एकड़ का या 1 एकड़ का या ऐसे आपने कुछ बताया अपने व्याख्यान में, वो आपके यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर है या गाँव में? सर इंस्टीट्यूट के अंदर है। एक हमारे पास 1 हेक्टेयर का है बड़ा, और हमारे केवीके में बगल ही सटा है सर, उसमें 1 एकड़ का है। तो एवरीथिंग इज देयर, उसमें एनिमल्स का भी है, डकरी भी है, गोट्स का भी, एवरीथिंग इज देयर सर। तो फार्मर्स आर वेलकम टू विजिट आवर इंस्टीट्यूट एट एनी टाइम सर। ओके, तो हम एक अगर कंडक्टेड टूर लाना चाहें अपने से जुड़े हुए किसानों का भी, और जो आगे की पीढ़ी है, मेरी हमेशा जो चिंता है वो अब आगे की पीढ़ी के लिए है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो हल नहीं चलाना चाहते, हल से ज्यादा अच्छी चीजें चलाना चाहते हैं, जैसे आपने मैकेनाइजेशन की बात करी और बाकी, या पोस्ट हार्वेस्ट है, या आपने एक जो बताया कि प्लांटिंग मटेरियल, जो नोडल प्लांटिंग मटेरियल है, उसका उद्यमिता या उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा जो बायो कंट्रोल एजेंट्स की एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि बहुत ही छोटे क्षेत्रफल में एक कमरे के अंदर हो सकती हैं, वो हम कुछ बच्चों को लाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि कैसे हो सकता है। तो वो आपके संस्थान में संभव होगा? यस सर, इवन जैगरी का भी है, सब चीज देख सकते हैं सर लोग जी। तो आपके यहाँ इंक्यूबेटर भी है? हाँ यस सर, ABI सेंटर है ICR का। अच्छा, तो इंक्यूबेट कर सकते हैं कुछ हाँ, एक दो कर सकते हैं सर। ओके, तो एक हमारे पास एक उद्यमी बनना चाहता है और बड़ा अच्छा, मतलब मास्टर्स डिग्री भी किया हुआ है एग्रीकल्चर से ही। यस सर। वो एक उद्यमी है जो जैगरी में मेरे साथ कुछ काम किया था वैल्यू एडिशन में जी। तो मैं चाहूंगा कि वो आपके इंक्यूबेटर में आ सके और फिर उसके द्वारा बाकियों तक वो बात पहुंच सके। तो यस सर, यस सर, वो आ जाए, हो जाएगा सर जी। और इंटरक्रॉपिंग के मॉडल अगर देखना चाहें तो है सर, बहुत हैं, अभी मिल जाएंगे, फील्ड में है सर, फील्ड में है। तो डॉक्टर सिंह, हम लोग कुछ जैसे हमारे जो अडॉप्टेड विलेजेस हैं, ई विलेजेस हैं, उनके लोगों को एक बार एक कंडक्टेड टूर डॉक्टर पाठक से डेट ले लेंगे कि इस डेट पे इस टाइम पे आ सकते हैं, तो 5-6 गांव के लोगों को लेके जाएं वहाँ और उनको हम दिखाएं कि ये संभावनाएं हैं और क्या क्या हो सकता है। तो उसमें वो जैगरी भी देख सकें, वो इथेनॉल भी देख सकें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के कैसे बायोमास भी यूज होगा और आगे बायो एनर्जी में भी हम जाएंगे, और भी क्या क्या इंटीग्रेशंस गन्ने के साथ पॉसिबल हैं। और जो गन्ने की खेती नहीं कर रहा, वो अगर गन्ने की प्लांटिंग मटेरियल का एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो उसके लिए और अच्छा है कि वो वहाँ सप्लाई भी कर सकता है और जरूरी नहीं है कि वो खुद उगाए। तो ये एक हम चाहेंगे। और दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन डॉक्टर पाठक एक सेतु का काम करती है। हम लोग R&D में नहीं है, हम R&D को बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का वहाँ काम करते हैं जहाँ कोई नहीं पहुंचा है। और फिर आप एक बार पहुंच जाओगे तो फिर आप और आगे उनको ले जाओगे। तो उसके लिए अगर हम एक छोटा सा MOU कर लें, यस सर,
हम सिर्फ इसी तक सीमित रखेंगे कि आपकी टेक्नोलॉजीज और बेनिफिशियरी के बीच में सीमेंटिंग की जाए और कुछ ऐसे मॉडल आपके इंक्यूबेटर से वहां तक ले जाए जाएं जब वो लोग कर सकें। अभी पिछले सप्ताह ही मैं डॉक्टर सिंह ने एक कि हमारा जो विलेजेस होते हैं उनको हम ई विलेज बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, तो उसमें हमने एक सक्षमा ई विलेज बनाया जिसमें वुमेन इन्वॉल्व है। तो अब वो वुमेन भी कैसे वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, हमने वहीं पे देखा कि उन्होंने अचार में जगरी जिसमें अचार में डाला था वो एकदम से बिक गया उनका। तो मतलब एक क्रेज भी पैदा हो रही है, जैसे ऑर्गेनिक की बात हुई थी, अब जो खांडसारी और गुड़ है ये अपनी एक जगह बनाता जा रहा है हेल्थ सेक्टर में। और वो आपकी बात ठीक है कि शुगर डायबिटीज का कारण नहीं है, लेकिन डायबिटीज एक बार आ जाए या प्री डायबिटिक हो गए तो फिर शुगर मना हो जाती है, तो उसमें आदमी परेशान होता है। और फिर वो जब गलत अल्टरनेटिव्स पे चला जाता है स्वीटनेस के, तो और ज्यादा परेशान होता है। तो वो किस तरह से हम करें, वो हम एक हमारा जो एक प्रोग्राम चलता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्री पाठशाला। अब न्यूट्री पाठशाला में हम बच्चों को इस तरीके की बातें बताते हैं कि मतलब भ्रम से बाहर आए, वो सत्य को जान सके कि कैसे किसी को भी आप डेमोनाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये डेमन है, शुगर एक राक्षस है। शुगर अपनी जगह है और वो कैसे उपयोग होना है जैसा आपने कहा उसको आगे ले सके। तो मैं आगे बड़ी आशा रखता हूँ कि इस अपार शक्ति को हम फ्लोराफोना साइंस फाउंडेशन के किसानों के साथ, उनके किसानों के बच्चों के साथ और एंटरप्रेन्योर्स के साथ जोड़ना चाहेंगे। यस सर, श्योर सर, वो तो हम लोगों का भाग्य होगा सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। Thank you so much, sir. I request Dr. A.K. Singh, sir, to present the vote of thanks, please. सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी दत्त पाठक जी का आभार करते हैं कि उन्होंने अपना जो मिठास भरा प्रेजेंटेशन है हम तक पहुंचाया, और वास्तव में इससे हमारे जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं और खास तौर से नवांकुर जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं किसान, वो बहुत लाभान्वित होंगे। डॉक्टर पाठक, आपने समय निकाला और बहुत ही विस्तार से आपने अपने संस्थान के बारे में बताया और जो प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं जिसके आधार पर हमारा देश न केवल उत्पादन के मामले में बल्कि निर्यात के मामले में भी नए कीर्तिमान दिनों दिन स्थापित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक और आपकी सारी टीम को। हम अवश्य फ्लोराफोना के माध्यम से, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अनुजा साहब ने बताया, कि जुड़ेंगे और आगे भी कुछ ऐसे प्रोग्राम गांव स्तर पर या आपके इंस्टीट्यूट में जरूर प्लान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हम अपने अध्यक्ष, फाउंडर अध्यक्ष डॉक्टर खनुजा के आभारी हैं कि जिनके दिशा निर्देश में ये वेब सीरीज चल रही है, कृषि से खुशी, और आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और बहुत ही रोचक भी रहा। डॉक्टर मनिका और डॉक्टर नीरज जो हमारे फ्लोराफोना फाउंडेशन के एक नए स्तंभ हैं और हमारी टेक्नोलॉजीज को, हमारी जानकारी को, हमारी वैज्ञानिक जानकारी को माध्यम से पहुंचाने का पूरा सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, या फिजिकल प्रेजेंस हो। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मनिका और डॉक्टर नीरज, और हमारे सारे दर्शक और श्रोता दर्शक जिन्होंने ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं और जो बाद में भी यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम आप सभी के आभारी हैं। और इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगले माह यानी कि अक्टूबर में दूसरे शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे हम एक नए विषय और नए एक्सपर्ट के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much. Thank you so much.